Hello children, the next topic is the Reign of Terror. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the Republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by the Revolutionary Tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotin, who invented it. Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the pain d'eglite, equality bread, a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of the traditional monsieur and madame, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convinced by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. So students, जो 1793 से लेकर के 1794 के बीच का पीरियड था वो टेरर का एक आतंक का दिन माना जाता है, एक भय का समय, वो समय भय का माना जाता है. रॉबेस्पेरी जो था वो अपने पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी को फॉलो कर रहा था जो कि पनिशमेंट की पॉलिसी थी, कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी. इसमें जिसको वो अपना एनिमी समझता था, जो भी लोग जो होते थे, अगर उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फॉलो नहीं किया, उसे नहीं माना, तो वो उन्हें, चाहे वो कोई भी हो, उसकी खुद की पार्टी के मेंबर हो, क्लर्जी हो, कोई भी हो, वो उन्हें या तो जेल में डाल देता था या फिर उन्हें पनिशमेंट के रूप में सजा दिलवा देता था. जो अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी मानता था उन लोगों को, तो फिर उन्हें उनके सर को कटवा दिया जाता था और वो एक गिलोटिन नाम की डिवाइस से कटवाया जाता था, जिसके दोनों साइड में पोल होते तो बीच में ब्लेड होता था, जो कि व्यक्ति के सर को, अपराधी के सर को धड़ से अलग कर देता था. रॉबेस्पेरी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक लॉ पास किया जिसमें जो मैक्सिमम सीलिंग थी, सारे प्राइजेस थे, जो ब्रेड थे, उनको फिक्स कर दिया और गवर्नमेंट की जो प्राइजेस फिक्स की गई थी उन्हीं के हिसाब से लोगों को ट्रांसपोर्ट के द्वारा अपना माल सिटी में ले जाना पड़ता था और उसी प्राइस पर उन्हें बेचना पड़ता था. इसके साथ जो सफ़ेद गेहूं का जो आटा होता था उसे सब लोगों को भूलना पड़ा और सभी को एक सा डीएग्लाइट इक्वालिटी ब्रेड होता था, उसे सभी को खाना पड़ता था. जो लोफ होता था उसी को सभी को खाना पड़ता था. इसके साथ साथ जो उस वक्त में मैडम और सर का बोलने का चलन भी खत्म कर दिया गया और सिर्फ सिटोयन और सिटोयनी बस बोला जाने लगा. मतलब जो जेंट्स होते थे उन्हें सिटोयन, जो लेडीज होती थी सिटोयनी, मतलब सिटीजन बोला जाने लगा. जो चर्च थे वो भी बदल दिए गए और उनको बैरक्स या ऑफिसेस में बदल दिया गया, गवर्नमेंट ऑफिसेस में. तो ये सारा जो एक तानाशाही टाइप का ये चलाने लगे थे, भले ही रिपब्लिक था लेकिन तानाशाही चलाने लगे थे. तो इसके कारण जो उनके खुद के ही सपोर्टर्स थे वो भी उनके विरोध में खड़े हो गए और कोर्ट में इनके खिलाफ केस चलाया गया और फाइनली जुलाई 1794 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उनके बाद उनको भी गिलोटिन कर दिया गया, मतलब उनका भी सर धड़ से अलग कर दिया गया. व्हाट इज लिबर्टी? Two conflicting views. The revolutionary journalist Camillin Desmoulins wrote the following in 1793. He was executed shortly after during the Reign of Terror. Some people believe that liberty is like a child which needs to go through a phase of being disciplined before it attains maturity, quite an opposite. Liberty is happiness, reason, equality, justice. It is the declaration of right. You would like to finish off all your enemies by guillotining them. Has anyone heard of something more senseless?
Would it be possible to bring a single person to be the scaffold without making 10 more enemies among his relation and friends? On 7th February 1794, Robespierre made a speech at the convention, which was then carried by the newspaper Le Moniteur Universal. Here is an extract from it. To establish and consolidate democracy, to achieve achieve the peaceful rule of constitutional law, we must first finish the war of liberty against tyranny. We must annihilate the enemies of the republic at home and abroad, or else we shall perish. In time of revolution, a democratic government may rely on terror. Terror is nothing but justice, swift, severe, and inflexible, and is used to meet the most urgent needs of the fatherland. To curb the enemies of liberty through terror is the right of the founder of the republic. सो व्हाट इज लिबर्टी, इसमें बताया गया है कि लिबर्टी तो जो 1793 1794 का पीरियड था उसे टेरर के रूप में जाना जा रहा था। तो उसे शॉर्टली जो रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमलिन थे उन्होंने शो किया कि जो कुछ लोग होते हैं लिबर्टी को एक बच्चे की तरह समझ रहे हैं, कि बच्चे को जैसा हम अपने हिसाब से चला लेते हैं, अपोजिट नहीं जा सकता, बच्चा शांत रहता है, डिसिप्लिन रहता है, तो इस तरह से लिबर्टी को उन्होंने ये बना लिया है। लिबर्टी जो है वो हैप्पीनेस है, रीजन है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, लेकिन और सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन ये राजा था, जो राजा नहीं, ये रिपब्लिक का जो वो था रॉबस्पेरी, तो रॉबस्पेरी क्या कर रहे थे कि वो पनिशमेंट की पॉलिसी अपना रहे थे और वो सबको गिलोटिन कर रहे थे, जो भी उनके विरोध में जाता था उसको गिलोटिन कर दे रहे थे। तो उन्होंने कहा ये सेंसलेस है और यह लिबर्टी नहीं है। आप क्या करें, अगर आपके पास एक को आपने सजा दी, एक को आपने गिलोटिन किया, उसके बाद क्या पॉसिबल है कि आपको सिंगल पर्सन को आप करने के बाद आपके और बहुत सारे उसके फ्रेंड्स और उसके रिलेशन वाले नहीं आएंगे आपसे बदला लेने के लिए, आपके अपोजिट खड़े होने के लिए। फिर 7 फरवरी 1794 को जो ये अपने रॉबस्पेरी थे, इन्होंने एक स्पीच दी और स्पीच में उन्होंने बोला कि जो और उनकी स्पीच को ले मॉनिटर यूनिवर्सल एक न्यूज़पेपर था, उसमें उन्होंने प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने कहा कि लिबर्टी क्या है। लिबर्टी जो डेमोक्रेसी में जो इस वक्त हम चाहते हैं कि पीसफुल रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब लोग उसको माने, तो उसके लिए क्या है, आप सब उसे पनिशमेंट कह रहे हैं, लेकिन वह क्या है, पनिशमेंट क्या है? यदि आपके कोई विरोधी ना रहे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह से चलेगी? अगर टेरर नहीं होगा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चलेगी, ये रॉबस्पेरी का मानना था। और उन्होंने इसको दूसरे तरीके से मतलब अपनी भाषा में उन्होंने ये बोला कि जो टेरर है वो कुछ नहीं है, वो जस्टिस है, स्विफ्ट है, सेवर है, इनफ्लेक्सिबल है, यही एक टेरर है। और उनका ये जो बयान था, इससे सभी लोगों को पता चल गया कि ये तो एक टेरर के ही को ही फॉलो करने वाले हैं। और इसलिए फिर उनको जुलाई 1794 में उनके जो विचारों को जब सब लोगों ने जाना, तब फिर लास्ट में उनको कोर्ट के द्वारा उनको सजा दिलवाई गई। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह से उनको सजा दी गई। इस तरह से ये पब्लिक को सजा देते थे और लास्ट में उनको भी इस तरह से गिलोटिन किया गया।